प्यारे बच्चों को सप्रेम नमस्कार। मैं ए.टी. कृष्णा, सरकारी बॉयज़ जूनियर कॉलेज अरकलगूडू से। बच्चों, आज हम इंटरनेट क्रांति इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह एक निबंध विधा की रचना है। अब हम शब्दार्थ जानेंगे। दायरा, तकनीकी, नज़रिया, अनगिनत, खबर, व्यय, ठप पड़ना, रकम, अभिलेख, फ्रॉड, पाश, यथावत, पायरसी। दायरा यानी क्षेत्र, तकनीकी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी कहते हैं, नज़रिया दृष्टिकोण, अनगिनत यानी असंख्य काउंटलेस, खबर समाचार, व्यय यानी खर्च, ठप पड़ना अर्थ बंद हो जाना, रकम धनराशि, अभिलेख लिखित विवरण, फ्रॉड यानी धोखा, पाश बंधन, यथावत जैसे के वैसे ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಪ್ಯಾರಸಿ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯ ಬನಾನ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು सिद्धपಡಿಸುವುದು। इंटरनेट क्रांति। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾರೆ। आज का युग इंटरनेट युग है। इंदिನ युग इंटरनेट युग ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। बड़े बूढ़ों से लेकर ಹಿರಿಯ ಮುದುಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು छोटे बच्चों तक ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಕೂಡ सब पर इंटरनेट क्रांति का असर हुआ है। ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ इंटरनेट क्रांतिಯ प्रभाव ಇದೆ। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। ಒಂದು ದಿನ ರೋಹನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಳಲು ತೊಡಗಿದ। तब उन्होंने कहा, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। दायरा ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ। और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण ज़िंदगी के बदले नज़रिए को भी उसे समझाया। ಮತ್ತು ಅವರು ಬದಲಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬದಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು। ಲೇಕಿನ್ ರೋಹನ್ ಇತ್ನೆ ಸೆ ಸಂತುಷ್ಟ ನಹಿ ಹುವಾ। ಆದರೆ ರೋಹನ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। ಅವನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ। बाबूजी इतना ही जानते थे। बाबूजी ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು कि इंटरनेट एक तरह से ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ का ಅಂತರ್ಜಾಲ है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಥರ ಆಗಿದೆ। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೋಹನ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು। वो अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। ಹೋಗು ನೀನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೋ ಅಂತ। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। ಮಾರನೇ ದಿನ ರೋಹನ್ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ। ರೋಹನ್, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? ಗುರುಗಳೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ? ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, बड़ा अच्छा सवाल है, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಲ, ಬಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ। ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ।
आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ आहार ನೀರು ಎಷ್ಟು आवश्यकವೋ इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इंटरनेट ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ। वह कैसे सर? ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती। ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था, ಅಥವಾ टेलीफोनನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए, ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ पल भर में ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ बिना ज़्यादा खर्च किए ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲದೆ कोई भी विचार हो, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಿರಲಿ, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ ಹೋ, ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂತ, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ ಹೋ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಹೋ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದುನಿಯಾ ಕೆ ಕಿಸಿ ಭಿ ಕೋನೆ ಮೇ ಭೇಜನಾ ಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ। ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಮುಮ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों की विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैलिಯ महत्वपूर्ण अंगವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಚಾರ ವ ಸೂಚನಾ, ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ठप पड़ जाते हैं, ಬಂದಾಗೋಗುತ್ತೆ। ನೇಹ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? इंटरनेट द्वारा ಇನ್ನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ द्वारा घर बैठे बैठे ಖರೀದಾರಿ कर सकते हैं। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖರೀದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು। ನಾವು ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು। कोई भी बिल भर सकते हैं, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸಸ್ ಕಟ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು, ಕೇಬಲ್ ಫೀಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಲೈನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। इंटरनेट ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು। ಅಜಯ್, और ಮತ್ತಿನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? और ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ। एक जगह बैठकर, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ 8-10 ದೂರದರ್ಶನದ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು। ನಾವು ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಜೊತೆಲಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಂಜಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಂ ज़रूर, ಹೌದು, ಖಂಡಿತ। भारत में IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज ಸಂಸ್ಥಾओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ IT ಮತ್ತು ITES ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ। इससे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ।
ಆಮೋದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ एक क्रांतिकारी खोज है। सोशल नेटवर्किंग ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ, जिससे दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ। ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆ ಕೈ ಸೈಟ್ಸ್ है। ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೈಸೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಆರ್ಕುಟ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಆದಿ। ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸೈಟ್ಗಳು। ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇನ್ ಸೈಟೋಂ ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಕೆ ಲೋಗೋಂ ಕಿ रहन सहन, ಈ ಸೈಟ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರ रहन सहन, ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಖಾನ್ ಪಾನ್, ಊಟೋಪಚಾರ, इसके अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ। बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಂಥ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ರಜತ್, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ ಅದ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭಿ ಕಾಮಕಾಜ್ ಕಾ ವಿವರಣ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು, ಕಾಮಕಾಜ್ ಕಾ ವಿವರಣ, ಅಭಿಲೇಖ ಲಿಖಿತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಏನು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ। ಆದೇಶ ಕೇಳ್ತಾನೆ, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವೇ ಆಯಿತು? ಶಿಕ್ಷಕ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ಏಕ್ ವರದಾನ್ ಹೈ, ಖಂಡಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಾನವೇ। ಉಸ್ನೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಅಪ್ನಾ ಕಮಾಲ್ ದಿಖಾಯಾ ಹೈ, ಅದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಮಾಲನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ತನ್ನ ಜಾದುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ। ಜೈಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೃಷಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಾ ಯಾನಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की ಕಾರ್ಯವಾಹಿ में भी, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಏನು ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का बहुत बड़ा योगदान है, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಯೋಗದಾನ ಇದೆ। ಪೂಜಾ, ಸರ್ क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? ಸರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದೆಯಾ? हाँ हाँ है, ಖಂಡಿತ ಇದೆ। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿಶಾಪ। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ की वजह से ಪ್ಯಾರಸಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ। ಪ್ಯಾರಸಿ ಅಂದರೆ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಯಾರೋ ಯಾವುದೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕದೀತಾರೆ। ಸೊ ಈ ಥರದವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ। ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್, ಮತ್ತು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು। ಆದಿ ಬಡ್ರಹಿ ಹೇ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಮುಕ್ತ ಯಾನೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ದಲೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಚಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ युवा पीढ़ी ही नहीं, केवल युवा पीढ़ी के ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों के पास में फंसे हुए हैं, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ। बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं, ಮಕ್ಕಳು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए, ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी. ಸರ್, ತಾವು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಶಿಕ್ಷಕರು, एक बात याद रखना, ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. यहाँ पर याद रखने वाली बात है, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು. इंटरनेट का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर पड़ा है. इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है. इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक छोटा सा गांव बन गया है. रोहन के पिताजी कहते हैं कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करने के लिए. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. कुछ साल पहले कोई खबर देनी हो तो चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था. पर अब इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम हो भेजी जा सकती है. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस. इसके आधारित संस्थाओं का प्रवेश हुआ है. इससे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है. कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुई है. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है. उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि. रक्षा दलों की कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. इंटरनेट एक अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पास में फंसे हुए हैं. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है. आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. तो एक वाक्य के प्रश्नोत्तर जानेंगे. इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ है कई अंतर्जालों का अंतर संबंध. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा रकम भेजा जा सकता है. प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र इंटरनेट द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? समाज के कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है.
इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक पड़ा है। इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। यह केवल गिनती का ही कार्य नहीं करता, आदेश पाकर सूचनाएं देने वाला एक मशीन है। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इंटरनेट से घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा रकम भी भेज सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस सरकारी प्रशासन है। इसके द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना संभव हो गया है। चाहे तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है? इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है। इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। अब अनुरूप शब्द देखेंगे बच्चों। कंप्यूटर यानी संगणक यंत्र, इंटरनेट अंतर्जाल। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। फेसबुक वरदान तो हैकिंग अभिशाप। वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय तो ई प्रशासन सरकारी प्रशासन। जोड़कर लिखना। इंटरनेट ने पूरे विश्व को, इंटरनेट के द्वारा कोई भी, इंटरनेट समाज के लिए, इंटरनेट की वजह से और इंटरनेट से सबको। अब देखिए तीसरे के लिए, इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। 5th वन, इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। 2nd वन, इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। 1st वन, इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। 4th वन, इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। सही शब्द चुनकर लिखना। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है अंतर्जाल। आईटी और ITES के से अनगिनत लोगों को डैश मिला है, रोजगार मिला है। सोशल नेटवर्किंग के कई डैश हैं, साइट्स हैं। ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है पारदर्शी। इंटरनेट सचमुच एक डैश है वरदान। देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है रक्षा दलों। इंटरनेट एक और वरदान है तो वह डैश भी है अभिशाप। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद देखेंगे। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है।
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರಾ घर बैठे बैठे ಖರೀದಾರಿ कर सकते हैं. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. अब देखिए विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स. बढ़ना घटना, स्थिर अस्थिर, मुमकिन नामुमकिन, वरदान अभिशाप, दुरुपयोग सदुपयोग, उपयुक्त अनुपयुक्त. अब अन्य वचन शब्द देखेंगे. पैसा पैसे, एक ही तरह के अन्य वचन शब्द है. पर्दा पर्दे, कमरा कमरे, दायरा दायरे, एक ही तरह के. अब दूसरे टाइप के. युग युग, दोस्त दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, रिश्तेदार रिश्तेदार. अब तीसरे टाइप के. खबर खबरें, किताब किताबें, जगह जगहें, कोशिश कोशिशें. चौथी टाइप के. ज़िंदगी ज़िंदगियाँ, जानकारी जानकारियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, जीवन शैली जीवन शैलियाँ. अब विराम चिन्हों के नाम जानेंगे बच्चों. आज का युग इंटरनेट युग है. पूर्ण विराम. इंटरनेट का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक. बड़ा अच्छा सवाल है, विस्मयादि बोधक. लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं, योजक चिन्ह. हाँ हाँ दुष्परिणाम है. हाँ हाँ के बाद जो है अल्प विराम. यहाँ पर काल परिवर्तन करके लिखेंगे. सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है. इसको यदि भविष्य काल में लिखेंगे, सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ेगा. रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था, और इसको वर्तमान काल में बदलेंगे तो रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है. रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा. यदि इसको भूतकाल में बदलें तो रोहन ने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा. अब काल पहचान कर लिखिए वाक्यों का काल. इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है, यह वर्तमान काल है. पिताजी ने रोहन को समझाया, यह वाक्य भूतकाल. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, भूतकाल. इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, वर्तमान काल. ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनेगा, भविष्यत काल. अब गृह कार्य की ओर देखेंगे. इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? विलोम शब्द लिखना. बढ़ना, स्थिर, मुमकिन, वरदान, दुरुपयोग. अन्य वचन शब्द देखेंगे. पैसा, पर्दा, कमरा, दायरा, युग, दोस्त, कंप्यूटर, रिश्तेदार. कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं. अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक घटक परीक्षा दी गई है. आप इसी तरह के 2-4 और प्रश्न पत्रिका तैयार कर लीजिए, और इस तरह से आप करेंगे तो पुनर्मनन आसानी से हो जाएगा और आपको याद रखने में कोई तकलीफ ना होगी. इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ. धन्यवाद बच्चों.